Hello student, this is Vivek Tiwari. I am assistant professor at Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur. Today we are going to learn a very important concept of object-oriented programming, that is operator overloading. This concept is included in unit 3rd of second paper of BSc second year Information Technology programming in C++. So let's start the concepts of operator overloading. Before going to the class, let's discuss what topics that we are going to cover in this lecture. The first we will learn what is operator overloading, basic introduction part, then how to define operator overloading, then what is operator function, then how to overload unary operator, then how to overload binary operators, and at last rules for operator overloading. So let's start the concept. Object-oriented programming concept having one most important concept, that is polymorphism. Polymorphism means ability to take more than one form. It is divided in two categories: compile time polymorphism and runtime polymorphism. Compile time polymorphism means compilers know at the time of compilation what to run. That means there is a prior knowledge which function, which operator have to perform the functions based on the different situation. It is known at the time of compilation only. And runtime polymorphism means everything is delayed at the time of running of program. That means at the time of compilation we don't know anything about what is going to execute. So polymorphism, different behavior in different situation. So compile time polymorphism of the polymorphism concept is further divided into two more categories, that is function overloading and operator overloading. Function overloading का मतलब होता है कि same name but different signatures. The function having the same name and multiple signatures is known as function overloading. At the time of compilation, based on the arguments, compiler will decide which functions among the multiple functions we have to execute. This is known as function overloading. And our today's topic is the second concept, operator overloading. So let's start the concept of operator overloading. जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया तो उन्होंने कहा था कि जो यूजर डिफाइंड टाइप जो उन्होंने डिफाइन किया है, दैट इज क्लास. क्लास विल बिहेव एग्जैक्टली सेम लाइक नॉर्मल डेटा टाइप, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप है, क्लास भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा. अब हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम दो नॉर्मल वेरिएबल को, जैसे कि दो इंटीजर वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं, तो क्या वैसे ही हम दो क्लास टाइप के वेरिएबल, मतलब हम क्लास के वेरिएबल ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं क्या जो बेसिक ऑपरेटर्स जो हमने पढ़े हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये जितने भी ऑपरेटर्स हमने अभी तक C++ में पढ़े हैं, क्या वो सारे ऑपरेटर्स को हम क्लास के साथ यूज कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सो C++ has an ability to provide special meaning to operator by extending its facility. This is possible only because of operator overloading concept. That means C++ के पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के पास ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने का मैकेनिज्म है. उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग स्पेशल मीनिंग इज नोन एज ऑपरेटर overloading. It creates a new definition for most of the C++ operator. ये जितने भी C++ ऑपरेटर है उसके लिए नया डेफिनेशन क्रिएट कर सकता है. उसके सिमेंटिक्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. बस सिमेंटिक्स को एक्सटेंड करने का मतलब ये कभी भी ये नहीं होगा कि हम उसके सिंटैक्स रूल को बदल सकते हैं. इसका मतलब है कि आप फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर दीजिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसमें दो ऑपरेंड यूज करते हैं, मान लीजिए 10 + 20 = 30, मींस प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एडिशन. उसका सिंटैक्स एकदम सिंपल है. हम दो ऑपरेंड अप्लाई करेंगे, लेफ्ट ऑपरेंड फिर ऑपरेटर फिर राइट ऑपरेंड, तो हमको प्लस ऑपरेटर एडिशन करके हमको आउटपुट रिटर्न करता है. तो हम इसके सेमेंटिक्स को एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम ये कर सकते हैं कि हम दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर दें
और जो उसका आउटपुट है वो दोनों स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के बाद माइनस ऑपरेटर की तरह बिहेव करने लगेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह बिहेव करने लगेगा, मॉड्यूल ऑपरेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स यू कैन एक्सटेंड द सिमेंटिक्स को आप चेंज कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर सकते हो, पर कभी भी आप सिंटैक्स रूल को चेंज नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्सटेंडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ operator, extending the facility of an operator that is provided by object oriented programming concept. But we can overload all C++ ऑपरेटर, जितने भी C++ ऑपरेटर्स हैं हम उसको ओवरलोड कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसको हम कभी ओवरलोड नहीं कर पाएंगे। उसमें से पहला ऑपरेटर है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर, तीसरा ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर और चौथा ऑपरेटर है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये चारों ऑपरेटर को आप कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना है। इसमें से किसी भी ऑपरेटर को आप कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे, आप उसको ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर फंक्शन। अब देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क कैसे करता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में स्पेशल मीनिंग मतलब एक्सटेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ ऑपरेटर ये प्रोवाइड हम कर सकते हैं ऑपरेटर फंक्शन के थ्रू। ये बहुत अच्छे से याद रखना है हमको कि इसकी फंक्शनलिटी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऑपरेटर फंक्शन के थ्रू। स्पेशल मीनिंग फॉर ऑपरेटर इज डिफाइंड बाय स्पेशल फंक्शंस कॉल्ड ऑपरेटर। अब यहाँ इसका सिंटैक्स देखिए। ये सिंटैक्स बेसिकली मैंने क्लास के बाहर ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न टाइप कि जो भी आपका ऑपरेटर है उसका रिटर्न टाइप क्या है। उसके बाद क्लास का नाम, जिस भी क्लास में आप ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद ऑपरेटर फंक्शन, दैट इज अ कीवर्ड। उसके बाद हमने लिखा है ऑपरेटर फंक्शन। ये ओपी वो ऑपरेटर है जिसको आप ओवरलोड करना चाहते हैं, वो ऑपरेटर है जिसको आप ओवरलोड करना चाहते हैं, और आर्गुमेंट्स जो भी आर्गुमेंट हम अपने इस ऑपरेटर फंक्शन को पास करना चाहते हैं। फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम दिखेंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप की बात क्लास का नाम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर फंक्शन। ये कीवर्ड है, आपको एग्जैक्टली वैसे लिखना है। ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर जिसको आप ओवरलोड करना चाहते हैं। आर्गुमेंट जो भी आर्गुमेंट आपको ऑपरेटर फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद फंक्शन की बॉडी, उसके बाद इसका स्कोप को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया बेसिक ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स। इसको याद रखना है, हम जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो इसी सिंटैक्स के थ्रू हम इसको प्रोग्राम को लिखेंगे। अब देखते हैं ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर को अब जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा उसमें हम यूनरी ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेता है उसको हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को बेसिकली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं यूनरी ऑपरेटर के लिए आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, फिर बाइनरी ऑपरेटर के लिए आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आप परफॉर्म कर सकते हो। अब देखते हैं यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हम जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है जिसके दो मेंबर हैं ए और बी। हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ए और बी में इनिशियल वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दिया है 10 और 20। ये हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम यूनरी माइनस साइन लगाएंगे। इस ऑब्जेक्ट में जैसे ही हम यूनरी माइनस साइन लगाते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ए की वैल्यू है वो -10 हो जाए और बी की वैल्यू हो जाए -20। ये हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब उसमें यूनरी माइनस साइन लगाएं तो हमारा आउटपुट ये होना चाहिए कि जो भी साइन है वो चेंज हो जाए। मतलब +10 है तो -10 हो जाए, माइनस है तो +10 हो जाए। तो ये हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं इसकी प्रोग्राम की कोड ऑफ प्रोग्राम में आपको अब शेयर करने वाला हूँ। अब उसमें लाइन बाय लाइन हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और समझेंगे कि इसका आउटपुट कैसे आता है। देखिए, सबसे पहला लाइन हैज इंक्लूड iostream.h, ये हेडर फाइल है जो हम C++ में यूज करते हैं, conio.h।
उसके बाद मैंने क्लास डिफाइन किया है ABC, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहले भी के भी क्लासेस में हमने इसी क्लास को डिफाइन किया था। इसमें मैंने दो वेरिएबल लिया है which is of private type. A or B are two private variables. Then in public section I have defined one default constructor. In public section I have defined one default constructor. इसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। इसके डेफिनेशन को मैंने ब्लैंक रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दो आर्गुमेंट लेता है, दो इंटीजर वैल्यू लेता है। ऑब्वियसली जो क्लास वेरिएबल A और B है उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए तो हमने पहला लाइन ऑफ कोड लिखा A इज इक्वल टू एक्स। जो भी हम पास करेंगे पहली वैल्यू A में स्टोर हो जाएगी और दूसरी वैल्यू B में स्टोर हो जाएगी। तो हम दो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिया है डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन में हमने सिर्फ A और B को की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कराना। दैट इज द ओनली सिंगल टास्क ऑफ display function, and that is print the value of A and B on screen so that we can check our operator, unary operator overloading has performed well or not. Okay, then this is the most important thing, and this is how to declare an operator function. Here I am declaring one operator function, void operator. Return type is void. That means this operator will not going to return any value. Then operator, this is operator function, operator. Then this one, this is minus, that we are going to unary minus, that we are going to overload, and argument nil. यहाँ पे हमने कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं लिया है। फिर से इसको समझते हैं। ये है ऑपरेटर का डिक्लेरेशन, हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैंने लिखा है void विच इज रिटर्न टाइप। उसके बाद फिर ऑपरेटर फंक्शन, फिर जिस ऑपरेटर को मैं ओवरलोड करने वाला हूं तो हम माइनस को ओवरलोड करने वाले हैं और आर्गुमेंट में मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। उसके बाद क्लास खत्म हो गया। अब इस ऑपरेटर को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इस ऑपरेटर को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का वही रूल है। सबसे पहले रिटर्न टाइप मैंने लिया है void, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया void। उसके बाद क्लास का नाम है हमारा ABC। फिर है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद ऑपरेटर फंक्शन, फिर ऑपरेटर फंक्शन कौन से ऑपरेटर को आप ओवरलोड करने वाले हो, उसके बाद आर्गुमेंट। ये हमने सिंटेक्स में देखा था। सिंटेक्स था हमारा रिटर्न टाइप है यहाँ void, फिर क्लास नेम है ABC, फिर था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मैंने लगाया है। फिर यू हैव टू राइट द कीवर्ड ऑपरेटर। आई हैव रिटन द कीवर्ड ऑपरेटर। देन वी आर राइटिंग OP, दैट इज ऑपरेटर इन टाइम एट द टाइम ऑफ सिंटेक्स डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस और आर्गुमेंट लिस्ट मेरा नील है इसलिए मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये मैंने ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद अब देखते हैं, मैंने उसमें डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखा है A इज इक्वल टू माइनस थे। मतलब मुझे मेरे प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव से मुझे क्लियर है कि जो भी वैल्यू A का हो उस पर मुझे माइनस सिंबल लगाना है, दैट्स इट। तो मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू माइनस है, B इज इक्वल टू माइनस B। ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोग्राम को रन करने का। अब इस प्रोग्राम के रनिंग मोड में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेन एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम होता है। फर्स्ट लाइन इज क्लियर स्क्रीन, टू क्लियर द स्क्रीन। देन आई हैव क्रिएट द ऑब्जेक्ट, देन आई हैव क्रिएट द ऑब्जेक्ट ABC, object of class ABC, and I provide two different values 10 and 20. So parameterized constructor will be called, 10 will be assigned to variable X and similarly 20 will be assigned to variable Y. 10 will be assigned to variable X and 20 will be assigned to variable Y. Then I am writing object1.display. Object1.display will print the value of A and B on the screen. So what is the value of A? Value of A is 10 and value of B is 20. So what will printed here? क्या प्रिंट होना चाहिए? डेफिनेटली A की वैल्यू प्रिंट होगी 10 और B की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 20। जब आउटपुट आएगा तो हम इसको देखेंगे। A की वैल्यू प्रिंट होगी 10, B की वैल्यू प्रिंट होगी 20। फिर मैंने लिखा -obj1। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कॉल कर रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ने कहा कि आपका यूजर डिफाइंड टाइप बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि आपका ऑर्डिनरी जो डेटा टाइप है वो बिहेव करता है। यूनरी ऑपरेशन
जो यूनरी ऑपरेटर है वो सिर्फ एक ऑपरेंड लेता है, चाहे आप किसी भी वेरिएबल के साथ आप उसको यूज़ करें, कोई भी ऑपरेंड के साथ आप यूज़ करें तो उसमें जो भी बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़र डिफाइंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर मैंने उसको यूज़ किया है, माइनस पहले लिखा फिर obj1 लिखा। इसका मतलब है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल हो रहा है। उसके बाद मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है obj1 डॉट डिस्प्ले। obj1 डॉट डिस्प्ले लिखने पे देखते हैं कि अब हमारे a और b की वैल्यू क्या होगी। जब इस प्रोग्राम को अब रन करके देखें तो रन करने पे हमें आउटपुट जो मिलना चाहिए वो मिलता है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू -10 और b इज इक्वल टू -20। तो ये हमको आउटपुट हमें मिलता है। तो पहला जो आउटपुट है वो यहाँ से आया है object1 डॉट डिस्प्ले, ये वाला आउटपुट हमें मिला है object1 डॉट डिस्प्ले से, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर मैंने लगाया -obj1, इसका मतलब है मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल किया है। फिर से मैं object1 डॉट डिस्प्ले कॉल करूंगा तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा क्योंकि हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन कॉल हो चुका है, ये आउटपुट मुझे मिलता है। सो ये हमने देखा कि हम किस तरीके से यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम बाइनरी ऑपरेटर को किस तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। हमने अभी जस्ट देखा कि यूनरी ऑपरेटर को किस तरह ओवरलोड हमने किया, उसी प्रकार हम देखेंगे कि अब बाइनरी ऑपरेटर को हम किस तरीके से ओवरलोड करें। तो सबसे पहले जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट t1, उसमें मैंने दो वेरिएबल लिया है, एक है HR स्टैंड्स फॉर आवर एंड MIN स्टैंड्स फॉर मिनट्स। अब इस ऑब्जेक्ट t1 में आवर 0 है, मिनट 30 है। हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है t2 ऑफ द सेम टाइम क्लास जिसमें आवर की वैल्यू 0 है और मिनट की वैल्यू 40 है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक तीसरा ऑब्जेक्ट है t3 टाइम क्लास का जिसमें आवर की वैल्यू 0 है, मिनट की वैल्यू भी 0 है। अब हमें एक बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई करना है प्लस, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट t1 और ऑब्जेक्ट t2 को ऐड करेंगे और एडिशन के बाद हमें मिलना चाहिए आवर इज इक्वल टू 1 एंड मिनट इज इक्वल टू 10। मतलब दोनों के मिनट की वैल्यू को हम ऐड करें, टाइम t1 और टाइम t2 के मिनट की वैल्यू को हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल हो जाते हैं 70 मिनट्स विच इज इक्वल टू 1 आवर एंड 10 मिनट्स। दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑब्जेक्ट t3। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। हमारे पास एक क्लास t टाइम है जिसमें दो प्राइवेट वेरिएबल हमारे पास है आवर एंड मिनट। उस क्लास के हम तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे t1, t2 और t3। हमें ओवरलोड करना है प्लस को जिसमें कि वो दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर सके। अभी तक प्लस से हम दो ऑपरेंड्स को ऐड करते हैं जिसमें से ऑपरेंड या तो कांस्टेंट होता है या फिर इंटीजर वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल हो सकता है। पर अभी तक हमारे पास फंक्शनलिटी प्लस में ये नहीं है कि हम किसी भी दो ऑपरेटर को ऐड कर सके, दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर सके। तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू सीखेंगे कि हम दो ऑब्जेक्ट t1 और t2 को ऐड करेंगे और उसमें जो भी वैल्यू होगा उसको t3 में असाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। सो फर्स्ट line of code is header file hivestream.h and conio.h. Then I have created one class. Class name is time. The class name is time. Okay, I have created two different variable or private variable, hour, HR and minute. Two different variable I have created. In the public section I have defined one constructor which takes one argument, that is it is parameterized constructor, that is integer t. It takes one argument, integer t. Then I am writing code HR is equal to t by 60 and minute is equal to t percent module 60. That means I am converting this t. I am converting this t which is entered in the form of minutes in hour and minute. So there is a task of our initialize constructor. Then I have created one default constructor also. यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया हुआ है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है विच इज़ पुट टाइम।
which will not return any value. The sole functionality of this function is that to print the value of HR and MIN variable on the screen. मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा तो उस ऑब्जेक्ट में एच और मिनट की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज दिस लाइन, टाइम ऑपरेटर. The return type here is object. The return type here is, I have mentioned return type as a class. The return type is time. Then I am write the operator function. Then I am writing plus symbol which we are going to overload. And again the argument is class type reference variable. I am taking reference of class as an argument. So this program is also used to show how to pass and class reference variable to the operator overloading concept. So here this is the syntax. Again I am revising the operator function syntax. First of all, return type, that is class, then operator function, then symbol which we are going to overload. Here I am going to overload plus symbol. Then as an argument I am taking class type of reference variable. Now I am going to define this operator. Okay, so first line is return type, that is class. The name of the class is also time, that's why I am written 2 times time here. The first time represent the return type and the second time represent the class name. Then scope resolution operator. Then I am writing operator keyword, that is operator function. Then the plus symbol which I am going to overload, and time type of reference k. K is a reference variable of class time. I am created one object of time t here. Then इस फंक्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये एज ए रेफरेंस हम क्लास के वेरिएबल को पास कर रहे हैं. मतलब जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा उसका आवर और मिनट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. तो मैंने एक टी टाइप का एक ऑब्जेक्ट यहाँ डिफाइन किया है जो कि टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट है. और इस ऑब्जेक्ट में मैं जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करने वाला है, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल होगा उसके आवर और मिनट को ऐड कर रहा हूँ. तो सबसे पहले इस पहले लाइन ऑफ कोड में हम देखते हैं कि हमने आवर को ऐड किया, फिर मिनट को ऐड किया. उसके बाद फिर ये वाला लाइन उसके लिए है कि अगर 16 मिनट से ज़्यादा जैसा ही होता है तो हमको उसको आवर में कन्वर्ट करना है. तो ये कैलकुलेशन हमने किया है आवर और मिनट्स के लिए. पहले आवर को ऐड कर लीजिए, फिर मिनट को ऐड कर लीजिए, फिर ये 2 लाइन ऑफ कोड उसके लिए कि अगर आवर मिनट 60 मिनट से ज़्यादा होता है तो हम उसको एक आवर में काउंट करेंगे, उसको मिनट में काउंट नहीं करेंगे. फिर मैंने लिखा रिटर्न टी, जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसको हम रिटर्न कर देते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, मेन फंक्शन, एंट्री पॉइंट ऑफ आवर एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम. मैंने लिखा क्लियर स्क्रीन. टू क्लियर द स्क्रीन देन आई हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट T1 10. T1 10 मतलब मैंने 10 पास किया, मतलब आवर कितना रहेगा T1 ऑब्जेक्ट का 0 और मिनट कितना रहेगा 10. फिर मैंने लिखा T2 20, मतलब ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें मैंने एक और वैल्यू पास किया 20. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाला 10 कहाँ जाने वाला है, इस कंस्ट्रक्टर के पास. इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, T की वैल्यू है 10, तो आवर इज इक्वल टू T बाई 60, उसका मतलब है 0, और मिनट इज इक्वल टू T परसेंट मॉड्यूल 60, इसका मतलब आएगा 10. तो जो T1 ऑब्जेक्ट है, T1 ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर हो जाएगा 0 एंड 10. आवर में वैल्यू स्टोर होगा 0 और मिनट्स में वैल्यू स्टोर होगा 10. फिर T2 ऑब्जेक्ट में आते हैं. T2 ऑब्जेक्ट में 20 पास होगा T के पास, आवर में फिर से आ जाएगा 0 और मिनट में आ जाएगा 20. तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए. अब हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट है, मैंने क्रिएट किया है T3. यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, उसका सीधा सा मतलब है ये कहाँ पे कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा. T4 फिर से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा. फिर यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल हुआ है, T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2. इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बेसिक फंक्शनलिटी देखिए कि हम यहाँ प्लस सिंबल को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए. उसके सिंटैक्स में हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ सिमेंटिक्स को यहाँ पे लिखा है. यहाँ पे जो हमने ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन किया है ये सिर्फ उसके सिमेंटिक्स को बदल रहा है, उसके सिंटैक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. तो मैंने लिखा है T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2. इसका सीधा सा मतलब है कि हम 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे.
ऐड करने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब देखते हैं कि T1 क्या है और T2 क्या है और ये फंक्शन में किस तरीके से वर्क करेगा। सो T3 मतलब ये जो रिटर्न T, ये जो टाइम T मैंने लिया हुआ है रिटर्न T, तो जो भी T का वैल्यू होगा वो स्टोर होगा T3 में। T1 प्लस T2 जो पहला ऑब्जेक्ट है जिसने कॉल किया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, तो एक स्टोर होगा T1 ये आवर में और दूसरा स्टोर होगा K डॉट आवर में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहा है और ये दूसरा जो K आया है वो है हमारे पास है, जिसको हमने रेफरेंस में हमने पास किया है। तो T1 का ओवर HR है, T2 का ओवर K डॉट HR है। जब दोनों को आप ऐड करोगे मतलब 10 मिनट्स और 20 मिनट्स को ऐड करोगे तो T3 का जो डिस्प्ले होगा पुट टाइम होगा वो क्या शो करेगा, 10 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स ऐड हो जाएंगे और आपके स्क्रीन पे दिखेगा आवर इज इक्वल टू 0 और मिनट्स इज इक्वल टू 30। आवर इज इक्वल टू 0 एंड मिनट्स इज इक्वल टू 30। अब ये देखिए मैंने पहले तो सिर्फ दो ही ऑपरेंड को ऐड किया था, अब ये इस लाइन ऑफ कोड में देखिए T4 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। आउटपुट क्या आना चाहिए, T1 की वैल्यू है 10, T2 क्या है 20 और T3 में क्या स्टोर हुआ अभी 10 प्लस 20 30। तो 30 प्लस 30 कितने हुए 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब है आवर 1 आवर एंड मिनट्स 0। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखेंगे कि इसका आउटपुट आने वाला है आवर इज इक्वल टू 0, मिनट इज इक्वल टू 30, T3 डॉट पुट टाइम का और T4 डॉट पुट टाइम का आने वाला है आवर इज इक्वल टू 1 एंड मिनट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेटर के साथ। सो ये प्रोग्राम उनके लिए भी यूज कर सकते हैं सेंडिंग ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट में ऑपरेटर ओवरलोडिंग में टाइम टाइप का एक रेफरेंस पास किया है जिसके थ्रू मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म किया है। तो ये दोनों प्रोग्राम जो हमने देखा यूनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करें और बाइनरी ऑपरेटर को किस तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। नाउ एट द एंड ऑफ दिस क्लास we'll see what are the various rules to overload operators. The first rule is that only existing operator can be overloaded, new operators can't be created. That means जो भी आपके पास existing operator है आप उसको overload कर सकते हैं, आप नया operator create नहीं कर सकते। You can never change the basic meanings of operator. आप कभी भी किसी भी operator की basic meaning को आप कभी भी change नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्लस ऑपरेटर है वो प्लस ऑपरेटर की तरह ही बिहेव करेगा, ओवरलोड करने के बाद वो माइनस ऑपरेटर नहीं बन जाएगा। मतलब उसका जो मीनिंग है जो पहले से वेल डिफाइंड है, यू कांट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दैट एटलीस्ट वन ऑपरेंड ऑफ ओवरलोडेड ऑपरेटर इज यूजर डिफाइंड। कम से कम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जिस भी ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हो कम से कम एक ऑपरेंड उसका यूजर डिफाइंड टाइप होना चाहिए। जैसे हमने पहले एग्जांपल में लिया यूनरी ऑपरेटर को हम ओवरलोड करने गए थे यूनरी माइनस को, तो हमने जो ऑपरेंड लिया था वो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप था, दैट इज यूजर डिफाइंड टाइप। फिर हमने बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया तो उसमें जो दोनों ऑपरेंड थे T1 और T2 दोनों ही टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट थे, मतलब दोनों ही जो ऑपरेंड है वो हमारे यूजर डिफाइंड टाइप है। और हमारा रिस्ट्रिक्शन ये है कि कम से कम एक ऑपरेंड आपका यूजर डिफाइंड टाइप होना चाहिए। Overloaded operator must follow the syntax rule of original operator. Means you can extend the functionality. That means you can change the syntax. You can change the semantics of an operator, but you can never change the syntax of original operator. जो भी इसका सिंटैक्स है आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यूनरी माइनस यूज करते हैं नॉर्मली किसी वेरिएबल के साथ, उसी तरीके से हम यहाँ यूज किए। जैसे कि बाइनरी प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं उसी तरीके से बाइनरी प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया है। There are some operators that can be overloaded that I have mentioned earlier in my class. That is 4 types of operator that I have mentioned: class membership operator, dot operator, point to member operator, scope resolution operator, conditional operator, and size of operator. This operator you can't overload. And there are also a list of operators that you cannot use with friend function. So these are the operators. You cannot use assignment operator with friend function, you cannot use function call operator, you cannot use subscripting operators with friend function, and class member access operator with friend function. These are the some rules for operator overloading. Along with that many more rules are also available for operator overloading. So in today's class we will learn about the basic operator overloading concept.
how to overload an operator, how to use operator function, how to overload a unary operator, how to overload binary operators, and basic rules for operator overloading. So these are the some books that I have referred for my class. And if you have any query and concern related with the topic, you can mail me. My email ID is provided in the beginning of my class. Thank you so much.